writing. Memo writing. Take out your copies and keep your pens ready. We will write a memo. But first, we will write some questions on memo. You have not logged in? Logged in. Can you see the slide? Writing a memorandum. Memorandum can also be a report. You're writing a report on something. It can be in a memo style. Write on the questions. Write the definition. Whatever you see, these are all questions. Define memo. Introduction to memo. Give the introduction to memorandum or memo. What are the advantages of a memo? Please write down in your copy. What are you writing? What are the purposes? What is the purpose of a memo? What are the characteristics of a memo? And what are the parts of a memo? टेक्निकली जान जाएंगे तो किसी भी तरह के एमसीक्यू में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. Done? How many questions have you written? Definition, introduction, advantages, purpose, characteristics, and parts of a memo. Can anybody define what is a memo? Before I give you the definition, can anybody define what is a memo? तुम लोग कहते ना वो क्या था, तो वो क्या था बताओ. Memo is a Latin word, means memorandum. That memo is a writing word. Recalling something. Recalling. या memorizing something. Memorizing, याद करना. नहीं. याद रखना. To recall. Remembering or recalling something. One to another in an organization. It can be one to another. It can be one in a group. It can be one person to the entire staff. It can be one person to one person. The memorandum is written to share any kind of information within the organization. Yes, it is written documentation which is shared within. It means you cannot write a memo to anybody who is not working in your organization. Letters आप लिख सकते हैं within the and outside the. But memos are normally written inside inside correspondence. Sonu Chaudhary, please mute yourself. Unmute. Mute रखिए अपने आप को. पूछना होगा then you can ask questions. Definition. A memorandum is considered inside correspondence. Please write in bullets. Whatever you see, it is prepared in bullets also. It is inside correspondence. इसका मतलब क्या हुआ? ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है. जैसे में मेमो लिखना है, तो अगर हमको मेमो लिखना है, तो हम किसी बाहर वाले ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लिख सकते. I will be only writing to anybody in the organization. So a memorandum is considered inside correspondence. Leave a space and write the second bullet.
It is written to someone in your company. आप अपने कंपनी में किसी को भी लिख सकते हैं, किसी को भी नहीं मतलब अपने हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली. It is a written statement you prepare especially for a person to communicate an order. This written statement. तो रिटन ही स्टेटमेंट हुआ ना, ये ऑरल थोड़ी होता है. रिटन स्टेटमेंट जो कि आप लिखते हैं, जो आप प्रिपेयर करते हैं किसी खास पर्सन के लिए, जब आपको उनको कोई इंफॉर्मेशन देना होता है, कोई ऑर्डर करना होता है, कुछ इंक्वायर करना होता है. फर्स्ट और सेकंड में हम तक क्या है, ये पर्सन को दिया जाता है और ये सबको जाएगा क्या. फर्स्ट और सेकंड जो लाइन है, सेकंड वाला में जैसे हर पर्सन को मतलब भेज सकते हैं. हर को नहीं भेज सकते हैं आप भेज सकते हैं अगर आप टॉप पोजीशन में हैं तो आप किसी को भी डाउनवर्ड भेज सकते हैं, और आप भेज सकते हैं अपने लेवल में, हर किसी को नहीं. तो रिटन स्टेटमेंट जो कि आप स्पेशली प्रिपेयर करते हैं. सेकंड वाला पूछ रहे हो, इट इज रिटन टू समवन इन योर कंपनी, मतलब कि आप जहां काम कर रहे हैं उसी कंपनी के में आप शेयर कर सकते हैं. कंपनी के बाहर नहीं जाएगी, किसी और कंपनी में आप नहीं भेज सकते. ये बिल्कुल इनसाइड कॉरेस्पॉन्डेंस है, कंपनी के अंदर की इंटरनल कम्युनिकेशन. तो ये एक ऐसा रिटन स्टेटमेंट है जो आप किसी खास पर्सन को किसी खास इंफॉर्मेशन देने के लिए, कुछ ऑर्डर देने के लिए, कुछ पूछने के लिए देते हैं, और एक खास तरीके से देते हैं. कोई चीज बताना है, इंस्ट्रक्ट करना है, कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन शेयर करना है, तो सिचुएशन 1 पड़ता है मेमो लिखने का. मेमो गुड न्यूज के लिए भी लिखा जाता है, किसी को अप्रेजल मिल रहा है, किसी को शाबाशी मिल रही है, किसी को इंसेंटिव मिल रहा है, उसके लिए मेमो होता है. और कोई अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है या कोई छुट्टी ले रहा है, आकर भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, कोई सीरियस कंसर्न किसी के बारे में, तो भी आप मेमो इश्यू कर सकते हैं. तो किसी भी तरह का अच्छा, नेगेटिव या पॉजिटिव हैपनिंग जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, उसके लिए मेमो इश्यू किया जा सकता है. हमेशा मेमो मतलब एक से ज्यादा आदमी को लिखा जाता है? नहीं, एक आदमी को एक आदमी आप एक आदमी को भी लिख सकते हैं, आप बहुत लोगों को भी लिख सकते हैं, आप पूरे स्टाफ को लिख सकते हैं. कोई मैनेजर पूरे स्टाफ को लिखेगा. हाँ, मैनेजर लिखेगा पूरे ऑल स्टाफ को. 1 to 1 लिखना है, आपको 1 को देना है, आपको 4 को देना है. 4 को देना है तो उन चारों के नाम होंगे, CC2 4 आदमी के नेम्स. ठीक है. तो मेमोज कैन बी गिवन इन ग्रुप, मेमोज कैन बी गिवन इंडिविजुअली. इस बात को ध्यान रखिएगा. The word लोअर ऑर्डर और सिमिलर काइंड ऑफ पोस्ट के लिए लिखा जाता है. सीनियर पोस्ट पे जो है उनके लिए नहीं लिख सकते हैं. नहीं, अपवर्ड कम्युनिकेशन नहीं होता है. हमेशा सीनियर जूनियर को लिखेगा. जूनियर कोई ऑर्डर नहीं दे सकता है सीनियर को ना, जूनियर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है. हाँ, ये भी. जूनियर कोई ऐसा कंसर्न नहीं है कि जो आप ऊपर दे सकते हैं. आप लेटर लिख सकते हैं, लेकिन आप मेमो इश्यू नहीं कर सकते. मेमो हमेशा डाउनवर्ड आता है. Yes. So introduction to memo. Let us start with the word memorandum, which is derived from the Latin word memorare. जो memorare को हाईलाइट कर दीजिएगा, जैसे इससे बोल्ड में लिखा हुआ है. लैटिन को बोल्ड में लिखिए. तो memorandum is not an English word. It is a Latin word. memorare, जिसका मतलब होता है टू रिमेम्बर. सेकेंड बुलेट आप छोड़ सकते हैं. लॉ तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन लॉ में जो मेमोरेंडम होता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को मीन्स अ डॉक्यूमेंट रिकॉर्डिंग टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. किसी कॉन्ट्रैक्ट का जो वहाँ वो
उसको मेमो कहा जाता है. यू कैन डिलीट दैट, उसको मत लिखिए आप. थर्ड लिखिए, द प्लूरल ऑफ मेमोरेंडम इज मेमोरेंडम्स और मेमोरेंडा. आप मेमोरेंडम्स भी छोड़ दीजिए. द प्लूरल ऑफ मेमोरेंडम इज मेमोरेंडा. Memorandum is singular and memoranda is plural. And the last is, it is commonly known as memo. दिया है लेकिन स्किप कर दीजिए ना. मेमोरेंडम जो मैं बोल रही हूँ बताइए ना, डिटेल में क्यों जाना आपको. नॉर्मली मेमो ही सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर बहुत ही टेक्निकली आपको लिखना है तो आप पूरा लिखिए, मेमोरेंडम लिखिए. एक से अधिक लिखना है तो आपको मेमोरेंडा लिखना है, अगर आप यूज कर रहे हैं द वर्ड तो. डन. Yes, ma'am. What are the advantages of it? मेमो का मतलब ही हुआ कि टू रिमेम्बर. मेमो रेयर का मतलब होता है कि याद रखना. क्या याद रखिएगा, उसमें लिखा रहता है. हाँ, टू रिमेम्बर. पिन करते हैं ना, कोई चीज लिख के डाल देते हैं, दे देते हैं. जल्दी किसी को इन्फॉर्मेशन वगैरह दे सकते हैं. हाँ, हो गया तुम्हारा. Yes. What are the advantages of memo? Quick and convenient. अभी देना है तभी तो किसी को पेपर निकालेंगे, मेमो लिखेंगे और तो दे सकते हैं. क्विक. एवरी ऑफिस में पेन एंड पेपर हमेशा अवेलेबल रहता है. क्विक एंड कन्वीनियंट. इनएक्सपेंसिव है, मतलब कोई कॉस्ट नहीं लगता है. इसमें आपको इंटरनेट नहीं चाहिए, कोई पोस्टेज नहीं चाहिए, आपको कोई कोरियर नहीं चाहिए. इट इज इनएक्सपेंसिव. सबसे बड़ी बात तो है कि इट इज अ रिटन रिकॉर्ड. एक रिकॉर्ड रिटन हो जाता है. तो ग्रेटेस्ट ऑफ एडवांटेजेस है, इट इज डॉक्यूमेंटेड, अ रिकॉर्ड which can be shown as proof. नोटिस पर तुम कहाँ चले आए? नोटिस तो बोर्ड पे लगता है, नोटिस बाहर से भी आता है. कंफ्यूज मत करो दूसरों को भी. स्कूल में जो मिलता था हर स्टूडेंट को एक छोटा कार्ड जैसा, वो क्या मेमो ही, वो नोटिस नहीं है. मेमो. हाँ, नोटिस तो बोर्ड पे लगता है. नोटिस बोर्ड पे लगता है, वो अलग चीज है. टेक्निकल कम्युनिकेशन में हर चीज का अलग अलग, लेटर का अलग अहमियत है, मेमो का अलग अहमियत. और सबसे अधिक यूज होता है ऑफिसेज में मेमो का, सबसे अधिक. स्कूल में जो मिलता था वो नोटिस लिखा रहता था, वो मेमो मिलता अब तुम जाओगे विप्रो में तो तुम स्कूल का छोड़ो स्कूल की बात. स्कूल में किसी को मेमो नहीं आता होगा इसलिए नोटिस लिख दिया. चलिए, मेमो शुड बी डिजाइन टू गेट योर मैसेज अक्रॉस क्विकली. मतलब क्विक का मतलब होता है, मेमो का पर्पस ही है, मेमो का मतलब ही है, मकसद ही है कि तुरंत इंफॉर्मेशन यहाँ से वहां पहुंच जाए. A memo should be designed to get your message across quickly. दूसरा है, छोटा होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए. Busy people do not want to waste time reading unnecessary information. Yes. तो unnecessary information मत डालिए. It should be concise. बुलेट्स में लिखना है तो 2-3 वर्ड लिखिए, पूरा स्लाइड लिखने की जरूरत नहीं है. So avoid all kinds of irrelevant or unnecessary information. प्रोग्राम खत्म हो गया. सीरियसली अगर मैं
What is the purpose of memo? These questions carry 4 marks. Advantages. What is the purpose of memo? क्यों दिया जाता है? To inquire. It means कुछ पूछना है आपको कि आपका सेल्स स्टाफ क्यों देर से आता है, आपका इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है, to inquire, to inform, to report, to remind, and the last is to promote goodwill. What is the meaning of to promote goodwill? नहीं, इंटरनल कम्युनिकेशन में जितना आप क्लैरिटी होगा, कितना बातचीत करेंगे एक दूसरे से, चाहे रिटर्न में चाहे मेमो में, उतना ही आप एक दूसरे से जुड़ते हैं. तो मेमोज आर रिटन टू सबको एक साथ बांध के रखने के लिए, कनेक्टिविटी बनाने के लिए. ताकि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं सब लोग एक दूसरे की बात जाने, सब कहाँ पर क्या हो रहा है. एवरीबडी शुड बी अपडेटेड, और जब सब अपडेटेड होंगे everybody will feel good and everybody will feel that this is a nice family. So what is the purpose of a memo? And to promote. Characteristics of a memo तो आप सीधे 7 C's of communication डाल दीजिए. मैम टू प्रमोट गुडविल के बारे में थोड़ा सा बताइए कि गुडविल कैसे प्रमोट होगा इससे. सुनता नहीं. टू प्रमोट गुडविल का मतलब होता है तुम अपने फैमिली में हो, रहते हो, क्या प्रोग्राम बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, क्या खाना बन रहा है, अगर तुमको कोई पूछ ही नहीं रहा है, तुमको कोई बता ही नहीं रहा है, तो तुमको क्या लगेगा तुम्हारे घर में कौन गेस्ट आने वाले हैं, कौन नहीं आने वाले हैं. तुम 2 दिन के बाद आते हो, तुमको कुछ पता नहीं रहता है, तुम आए हो फिर भी तुमको पता नहीं, तुम अपने धुन में रहते हो, तुमको कुछ घर में क्या हो रहा पता ही नहीं है, कौन आया कौन गया, तो तुम क्या फील करोगे. कोई तो मुझसे कुछ बोलता ही नहीं है, तो तुम अलग थलग बैठे रहोगे. और अगर तुमको सब चीज पता रहेगा, क्या खाना बन रहा है, कल क्या खाना बनेगा, कल कौन आने वाला है, कल किसका, परसों किसका बर्थडे है, और आज किसके यहाँ पार्टी में जाना है, तुमको सब इंफॉर्मेशन मिलेगा तो तुम खुश रहोगे. और क्या. उसी तरह से कंपनी भी एक फैमिली होती है, तो कहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब कुछ आपको अगर मालूम है, आप अपडेटेड है, मतलब आप कंपनी में काम करने के लायक है. नहीं तो आप कोना पकड़े रहेंगे, पता ही नहीं है कितना बचा आया, पता नहीं कितना बचा बैग छोड़ के गया, पता नहीं क्या आईडी था उस लड़के का, पता नहीं कौन शोर मचा रहा था, पता नहीं. तो मिस्टर पता नहीं अगर है मतलब कि उनको कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर गुडविल कहाँ से होगा. मुझे कुछ पता नहीं क्या होता, मुझे कुछ पता ही नहीं, तो क्या होगा, आप विल फील बैड कि आप इतना अपने को अनइम्पोर्टेंट समझिएगा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं रहता, मुझे कुछ बताता ही नहीं है कोई, मतलब हम एक अनइम्पोर्टेंट पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन है, और सब कुछ अपडेटेड है. जैसे बहुत चीजें के बारे में पूछा जाता है, मैम ये कब होगा, मैम वो कब होगा, मैम कौन चीफ गेस्ट आएगा, व्हाई डू यू आस्क मी, थोड़ी कि हमें को सब पता रहता. नहीं आपको इसलिए पता है कि हम इन्वॉल्व रहते हैं. पूछताछ, इंक्वायरी, हाँ हाँ, इंक्वायरी एंड इंक्वायर सेम चीज होता है. हाँ, टू इंक्वायर आप ई भी लगा सकते. समझे गुडविल. यस मैम. मतलब कि आपस में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अच्छी है, सबको पता है कहाँ पर कौन क्या कर रहा है, क्या होने वाला है, क्या इवेंट है क्या नहीं है. तो जब तक ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगा, ये किसका काम है, ये टॉप पर्सन का काम है कि सारे लोगों को एक साथ जोड़ के रखने का, ये काम HR का होता है. ठीक है.
सिमिलरली जैसे मैंने आपको दे दिया एग्जाम्पल फैमिली का, कुछ पता नहीं तो आप बोलेंगे मुझे तो कुछ पता ही नहीं, कोई बताता ही नहीं कुछ हमको। जैसे स्टाफ वगैरह उसको पता करने की मतलब ये होगी इच्छा होगी तो मतलब वो ऐसा होता है ना कि वो बता नहीं, पूछ भी रहे बाय डिफॉल्ट थोड़ी ना आपको ये, यू मस्ट जितने भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है इट शुड बी शेयर विद एवरीबॉडी, और सारा इंफॉर्मेशन अगर शेयर होता है तो ऑटोमेटिकली गुडविल प्रमोट हो जाता है, एवरीबॉडी नोज। What are the characteristics of effective memo? जो कुछ भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में है, oral or written, it means the 7 C's of communication, तो बिल्कुल डाल दीजिए आप। A good memo shares certain characteristics which include the following: clarity, यहाँ 4 के बारे में दिया है। Clarity आप जानते हैं अच्छी तरीके से clarity क्या होता है। Every message that you are writing in a memo should be clearly stated. Second is conciseness, मतलब to the point, short, crisp. Do not write long. जैसे पहले आपका स्लाइड पढ़ा आपने कि nobody has the time to read long messages, so keep your messages as short as possible. Very few words. यूनिटी ऑफ थीम का मतलब होता है एक ही पॉइंट पर रहिएगा, एक ही सब्जेक्ट पर रहिए, 3-4 इंफॉर्मेशन एक साथ मत डालिए, एक मेमो में एक ही दीजिएगा। थीम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल थीम अगर आप किसी को दे रहे हैं सब इवेंट के बारे में, तो उस इवेंट के बारे में ही बात कीजिए और अलग बात मत कीजिए, एक ही टॉपिक पे रहिए। एंड फोर्थ इज इनफॉर्मल टोन का मतलब होता है आपका मेमो का राइटिंग स्टाइल टेक्निकल होते हुए भी शुड बी कॉन्वर्सेशनल। जिस तरह से आप बात करते हैं, सपोजिंग ये लिख करके नहीं आपको फोन से बोलना होगा कि भाई मेरा क्लास ले लीजिए, मैं आज जा रही हूँ बाहर, मेरा आज क्लास ले लीजिए। तो उसी तरह से हम फॉर्मली इनफॉर्मली लिखेंगे मेमो में भी। For example, to XYZ faculty from Sanjay Sinha. Subject: engage my class from 9 to 10. फिर डायरेक्ट मैसेज डेट के पहले डेट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे हम? प्लीज टेक माई क्लास फ्रॉम 9 to 10 सिंस आई विल बी आउट, थैंक यू। बस जितनी शॉर्ट में एक बार देखिए हम समझ जाएंगे। इनफॉर्मल टोन समझ गए ना, कॉन्वर्सेशनल टोन। जिस तरह से आप इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं अपने पेरेंट्स को या अपने दोस्त को या अपने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स को, टोन होना चाहिए मेमो का। ये सब फर्क है, द डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड मेमो। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए आपको, difference between notice and memo. Clarity. Why is clarity important? एक और क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर। Why is clarity important in a memo? A memo must be clearly written because an unclear and vague memo, ये vague का मतलब क्या होता है? complex language, not clear, doubtful, समझ में नहीं आ रहा, vague। So a memo must be clearly written because an unclear and vague memo will confuse the reader. Confuse होगा, confuse हो जाएंगे तो जो क्या होगा? लीडिंग टू डिले। समझने में नहीं आया तो फिर वो उसको फिर पूछेगा, उसको फिर इंक्वायर करेगा, फिर उसका जवाब आएगा, तो अननेसेसरी डिले होगा। और क्या होगा? डिले तो हुआ, बीच में कोई एक्शन ही नहीं हुआ। लेकिन मेमो का मतलब ही है कि इमीडिएट एक्शन टेकन।
That is why a memo should be clearly written so that there is no doubt and immediate action is taken. Right? Conciseness तो बहुत पढ़ चुके हैं, अब conciseness क्या होता है? Concise and direct memos are often effective. Concise है, direct message है तो आपका काम जल्दी होगा, effective है, समझ में भी आ गया, clarity भी है, concise भी है. So कोई हेर खेर नहीं है, कोई doubt नहीं है, कोई confusion नहीं है. A memo should contain only essential information. It means एक memo में सिर्फ important ही information होनी चाहिए. Essential. Unimportant, unnecessary should be avoided. And third part says the same thing. Avoid unnecessary explanation, repetition. किसी बात को repeat करें बार बार. Wordy expression मतलब बहुत ज़्यादा word डाल दिए हैं. And amplification मतलब बहुत amplify करके, बहुत exaggerate करके, बढ़ा चढ़ा करके किसी चीज को नहीं बोलना है, नहीं लिखना है. Ensure that the memo makes its point with the fewest possible word. जितनी कम word आप डालेंगे उतना अच्छा होगा. Unity of theme. मैम बैक करिए ना, नहीं लिखे हैं एक पॉइंट वाक्य. लिखना क्या था, बस थोड़ा बहुत लिख लेते, वर्ड बाय वर्ड थोड़ी को लिखना है, समझ के अपने मन से लिखना है. रिपीट मत करिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा वर्ड नहीं होना चाहिए. हो गया मैम. Unity of theme. A memo which does not have unity of theme distracts the reader and ceases, terminates to be purposeful. अगर आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक के बाद दूसरा थीम से अलग दे रहे हैं, तो क्या होता है, एक खत्म हुआ नहीं कि दूसरी बात आप सामने लाके डाल दिए, तो क्या होता है, डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है. पहले वाले को भूल गया, अब सेकंड वाले पॉइंट पे आ जाता है. तो एक ही थीम पे होना चाहिए और एक ही सब्जेक्ट पे होना चाहिए. An important way of ensuring unity in a memo is to make sure that it deals with only one topic. Do not write multiple topics. If you have to write 5, write 5. If you अगर 5 कंसर्न आपको है, एक पर्सन के लिए 5 चीज करना है, 5 मेमो दीजिए उसको, वो एक के बाद एक जवाब देता रहेगा. A single topic is developed and related ideas are subordinated. तो एक टॉपिक है, जैसे लेट कमिंग है, लेट कमिंग की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो डाल दीजिए. आप लेट आते हैं तो ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो हो जाता है, वो हो जाता है, या आप टू मच लीव ले रहे हैं आप, तो आप टू मच लीव ले उसी मुतालिक लिखेंगे. बहुत लीव लेने से क्या होता है, काम हैम्पर होता है, समय पर डेडलाइन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है, दूसरों को परेशानी होती है कि उसको आपको काम करना पड़ जाता है, वर्कलोड बढ़ जाता है. तो जिस टॉपिक के रिलेटेड आप करिए ना, लेकिन डू नॉट राइट लेट कमिंग भी है और दूसरी भी कुछ बात आप डाल दे रहे हैं उसके लिए नहीं. तो वन टॉपिक एंड वन थीम. बढ़े आगे. अच्छा, एक साइड और इनफॉर्मल टोन होना चाहिए. इन मेमो टोन इज यूजुअली इनफॉर्मल एंड कॉन्वर्सेशनल. पहले भी बताया था, जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, शुड बी कॉन्वर्सेशनल. As the writer is likely to be familiar with the reader, इसलिए कि वो फ्रेंडली है, फेमिलियर है. काम तो बहुत लोग उससे ले सकते हैं. जैसे हम ही को मेरा क्लास मैनेज करवाना है तो हम किसको बोल सकते हैं,
जिससे हम फ्रेंडली हैं, सबसे फ्रेंडली हैं। सबको बोल दीजिए। देखो बोल देते हैं कि मेरे वैसे कभी कभी सोनी सर बोल देते हैं कि मैम थोड़ा सा क्लास थोड़ा सा खींच दीजिएगा, थोड़ा लेट आने में, हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि मेरा कनेक्टिंग क्लास 11 बजे। तो फिर वो किसी को दूसरे को बोलेंगे जिनसे वो कंफर्टेबल। तो 2 टीचर आ जाएंगे। एक बार तो भेजिएगा ना। हाँ, अब 4 लोगों को एक ही में थोड़ी भेजेंगे, और 4 जने यहाँ पर आ जाएंगे, ये क्या है? तो as the writer is likely to be familiar with the reader, a personal tone may be used in memos. A very formal tone might sound intimidating. मतलब कि बहुत ज्यादा फॉर्मल लिखने के लिए लगा कि आप उसको ये कर रहे हैं, उस पर हावी हो रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। That's it. We'll continue. There are more slides. PDF सेंड कर दीजिए। सेंड तो कर देंगे, लेकिन समझाएंगे पहले।